जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 21। सुखमातयन्तिकं यतद्बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। हे अर्जुन, जब योग साधन से इंद्रियों का निग्रह होता है, उसी समय चित्त आत्मस्वरूप में प्रवेश करने लगता है। फिर जब चित्त सद्गुरु तत्व में पूर्णतः लय हो जाता है, तो सद्गुरु कृपा से उसे आत्मिक उड़ान प्राप्त होती है और तब वह अपने केवलात्म स्वरूप की ओर देखता है। तब उसे देखते ही वह पहचान जाता है और कहता है, मैं स्वयं यही तत्व हूँ। ज्यों ही वह उसे पहचान लेता है, त्यों ही वह आत्मिक आनंद के सुख का भोग करने लगता है और फिर आप से आप उस परमात्म तत्व के साथ मिलकर एक रूप हो जाता है, जिसका वास्तविक ज्ञान इंद्रियों को कभी होता ही नहीं। उसी के साथ वह तन्मय होकर अपने आत्म स्वरूप में सुख से रहता है। परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर योगी की उसमें सदा के लिए अटल स्थिति हो जाती है। फिर वह कभी किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से परमात्मा से अलग नहीं होता। When one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga, he acquires the ability to see the self by the pure intellect which transcends the senses, and to relish and rejoice in the self. Established thus, one never departs from the reality. Om. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుత పరసత్మాత్మ శ్రీ యశపాల్జీ మహారాజు వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 21. సుఖమాత్యంతికం యత్తద్బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియం వేత్తి యత్ర నచైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః. ఓ అర్జున, యోగ సాధన ఎప్పుడు ఇంద్రియ నిగ్రహం జరుగునో అదే సమయంలో చిత్తము ఆత్మస్వరూపంలో ప్రవేశించడం ప్రారంభిస్తుంది. తర్వాత చిత్తము సద్గురుతత్వంలో పూర్తిగా లయమైనప్పుడు సద్గురు కృపతో అతనికి ఆత్మికోద్ధరణ జరుగుతుంది. అంతటా అతడు కేవలం తన ఆత్మస్వరూపమునే చూస్తూ ఉంటాడు. ఈ ఆత్మ దర్శించినంతనే అతడు దాన్ని గుర్తించి స్వయంగా నేనే ఈ తత్వాన్ని అని చెబుతాడు. ఎప్పుడైతే అతడు దాన్ని గుర్తిస్తాడో అప్పుడు అతను ఆత్మగాను సుఖమును అనుభవించుట ప్రారంభించి తనంతట తాను ఆ పరమాత్మతత్వంతో కలిసి ఏకరూపుడవుతాడు. దేని వాస్తవ జ్ఞానం ఇంద్రియములకు ఎన్నటికీ కలగదో అటువంటి జ్ఞానములో తన్మయుడై తన ఆత్మస్వరూపమునందే సుఖంగా ఉంటాడు. పరమాత్మతత్వ సాక్షాత్కారం కలిగిన పిమ్మట యోగికి దాని యందు సుస్థిరమైన స్థితి కలుగుతుంది. పిమ్మట అతడు ఏ స్థితిలోనూ ఏ కారణం చేతనూ పరమాత్మ నుండి వేరు కాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసరేడు. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 21. അല്ലയോ അർജുന, യോഗയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സ് സദ്ഗുരുവിൻ്റെ തത്വത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഇണങ്ങുകയും സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ അത് ആത്മീയമായ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ആത്മാവിലേക്ക് നോക്കുന്നു. അത് കണ്ടയുടനെ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയും, ഞാൻ തന്നെ ഈ ആത്മസ്വരൂപമാണ്. അങ്ങനെ അത് തിരിച്ചറിയുന്ന മാത്രയിൽ അവൻ ആത്മീയ ആനന്ദത്തിൻ്റെ സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. തുടർന്ന് അവൻ തന്നെ ആ ദിവ്യ ഘടകവുമായി ഒന്നായിത്തീരുന്നു. അതിൻ്റെ
യഥാർത്ഥ അറിവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരിക്കലും ലഭ്യമല്ല. അതിനാൽ അവൻ ആ ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ ലയിച്ച് സ്വന്തം രൂപത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. ഒരു യോഗി ദൈവീക തത്വം സാക്ഷാത്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അവൻ്റെ ശാശ്വതമായ അവസ്ഥ അഥവാ സ്വരൂപം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അവൻ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുകയില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. സുഖമാത്യന്തികം യതദ്ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। हे अर्जुन, जखन योग साधन सँ इंद्रिय सबके निग्रह भ जाइत अछि ताहि काल में चित्त आत्मस्वरूप में प्रवेश करऽ लगैत अछि। फेर जखन चित्त पूर्णतः सद्गुरु तत्व में लय भ जाइत अछि तखन सद्गुरु कृपा सँ ओकरा आत्मिक उड़ान प्राप्त होइत अछि। तखन ओ केवल अपन आत्मस्वरूप दिस ताकैत अछि आ देखैत देरी ओ ओकरा चिन्ह जाइत अछि आ कहैत अछि, हम स्वयं यह तत्व छी। जखने ओ ओकरा चिन्ह लैत अछि तखने ओ आत्मिक आनंद के सुख भोगऽ लगैत अछि आ फेर अपने आप ओ परमात्म तत्व संग मिल कऽ एक रूप भऽ जाइत अछि। जे वास्तविक ज्ञान इंद्रिय सबके कखनो नहि होइत अछि, ओहि तत्व में तन्मय भऽ कऽ ओ अपन आत्मस्वरूप में सुख सँ निवास करैत अछि। परमात्म तत्व के साक्षात्कार भऽ गेलाक बाद योगी के स्थिति ओहि में सदा लेल अटल भऽ जाइत अछि। फेर ओ कखनो कोनो अवस्था में कोनो कारण सँ परमात्मा सँ अलग नहीं होइत अछि। जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 6 श्लोक 21. हे अर्जुना, जेव्हा योगाद्वारे इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवले जाते तेव्हा मन आत्म्यात प्रवेश करू लागते. मग जेव्हा मन सद्गुरु तत्वाशी पूर्णपणे एकरूप होते तेव्हा सद्गुरूंच्या कृपेने ते आध्यात्मिक उडाण प्राप्त करते आणि नंतर ते त्याच्या एकमेव आत्मरूपाकडे बघत राहते. तेव्हा ते पाहताच तो स्वतःला ओळखतो आणि म्हणतो, मी स्वतःच हे तत्व आहे. ते ओळखताच तो आध्यात्मिक आनंदाचा आनंद घेऊ लागतो आणि नंतर तो स्वतः त्या दिव्य तत्वाशी एकरूप होतो, ज्याचे खरे ज्ञान इंद्रियांना कधीच उपलब्ध नसते. त्यासोबत तो लीन होतो आणि स्वतःच्या स्वरूपात आनंदाने जगतो. दिव्य तत्वाची जाणीव झाल्यानंतर योगी त्यात कायमस्वरूपी स्थिती प्राप्त करतो. नंतर तो कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही कारणास्तव परमात्म्यापासून कधीही वेगळा नहीं होत. जय गुरुदेव. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।